Why is Omar Abdullah citing Mamta Banerjee's example while talking about seat sharing with the INDIA in Kashmir? We have a very interesting reaction coming in from Omar Abdullah about being deemed rigid over not ceding the Anantnag seat for Mehbooba Mufti's PDP. Remember, Rahul Gandhi had tried to mediate between the NC and the PDP but failed, and NC announced candidates on 3 of the 6 seats in Jammu and Kashmir and Ladakh. Now, Omar Abdullah is saying that if the Congress wants to accommodate PDP, they might as well go ahead and do it, but they should give seats to the PDP from their quota. Listen in. अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते जिस तरह ममता बनर्जी ने किया, वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना। 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहाँ की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ की रिजिडिटी है? 50% ना। मुझे और, मैं कोई कह रहा हूँ, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए जहाँ पे 50% कांग्रेस ये कह रही है कि हम जान देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते हैं? वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। Yeah, but what's happening with the India alliance in Jammu and Kashmir? Omar Abdullah is directly sending a message to Rahul Gandhi saying कि आप कौन होते हो सीटें डिसाइड करने वाले? And if you want to give any seats to PDP, give it from you. Your quota, we won't let go of the seats that we won in. Well, exactly. There's a fresh tussle that we are witnessing in the Kashmir Valley when it comes to the India allies. Earlier, it was the Omar Abdullah who said that if the Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, or Priyanka Gandhi want to contest in the Kashmir Valley, we will give them the Anantnag reservation. But somehow today's statement reflects the changing mood of the Omar Abdullah. Somehow we are witnessing that Omar has to say that Congress is nobody to decide on the seats where the 50% are of the national conference, and if so, they want to spare the seat for the PDP. Congress can give from their quota. That's the to in the Jammu and in the Ladakh province. Now remember, he has also castigated the move, saying that the Mamta Banerjee has not spared even the Congress winning seat in the West Bengal. Somehow this is a flexibility that the national conference is just fielding the candidates on the 50% of the union territory. So this is a fresh tussle that are being witnessed in the Kashmir Valley. Somehow we just spoke to the General Secretary of the PDP shortly from now in Srinagar. He confirms to the Times Now that in the coming days the party is going to field the candidate, whether they are going to solo or they are in the consideration with the Congress, and all the perspective will be put on a table before candidature will be decided. So this is the scene from the PDP that in coming days they are also going to field their candidates in the Kashmir Valley. If they are going solo, they said that they are going to field. As you get us these details of what's happening in both the NC and the PDP camp, we have Bashir Sheikh joining us at this point of time from the National Conference. कांग्रेस से क्या कोई बहुत ज्यादा नाराजगी है? उमर अब्दुल्ला तो राहुल गांधी के मित्र भी है, तो क्या ये बातें पहले सॉर्ट नहीं की गई बशीर जी? ऐसा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है किसी से भी। जो उमर साहब ने पहले ही कहा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर साहब, उन्होंने कहा है कि जो 3 सीटें कश्मीर की हैं वो पहले ही इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, इंडियन अलायंस के साथ हैं।
तो वो जो नाराजगी वाली कोई बात नहीं। अब इधर उधर से जो कुछ चीजें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है। हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि जो सीटें जिसके पास हैं वहाँ उनका ही क्लेम है। बशीर जी, माफी चाहती हूँ रोकने के लिए, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ओमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और उनके शब्द ये थे कि कांग्रेस कौन होती है डिसाइड करने वाली कि पीडीपी को कौन सी सीटें मिलेगी, और अगर कांग्रेस सीटें देना ही चाहती है तो वो अपने कोटे से दे। तो एक तो लग रहा है कि कुछ एक टसल जारी है कांग्रेस के साथ। नहीं है, उन्होंने कोई सा क्वेश्चन किया किसी ने कि भाई कांग्रेस के फैसला करेगी। उन्होंने कहा अलायंस पार्टनर हैं हम, 3 सीटें जब ऑलरेडी उनके साथ हैं, और फॉर्मूला यही है कि जो सीट उन्होंने एक एग्जांपल दी कि कांग्रेस में मगरबी बंगाल के अंदर जो जीती हुई सीट है। बशीर जी, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, पर एक सवाल आपसे फाइनली पूछूंगी। अलायंस बिल्कुल एकदम ऑन ट्रैक है, सब कुछ बहुत अच्छा है? On track, nothing is wrong there. All right. So the NC they're coming out and saying, while Omar Abdullah has given out a very, very interesting reaction, NC leaders on Times Now saying that alliance is very much on track. Why is Omar Abdullah citing Mamta Banerjee's example while talking about seat sharing with the INDIA in Kashmir? We have a very interesting reaction coming in from Omar Abdullah about being deemed rigid over not ceding the Anantnag seat for Mehbooba Mufti's PDP. Remember, Rahul Gandhi had tried to mediate between the NC and the PDP but failed, and NC announced candidates on 3 of the 6 seats in Jammu and Kashmir and Ladakh. Now, Omar Abdullah is saying that if the Congress wants to accommodate PDP, they might as well go ahead and do it, but they should give seats to the PDP from their quota. Listen in. अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना। 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहाँ की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ की रिजिडिटी है? 50% ना। मुझे और, मैं कोई कह रहा हूँ, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए जहाँ पे 50% कांग्रेस ये कह रही है कि हम देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते हैं? वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें।